Hello students, myself Deepak Zade. Today we'll start with kinetics of particles. इसमें जो पार्ट है थर्ड पार्ट, that is what? Impulse momentum principle. What we'll study in this particular chapter, तो principle of impulse and momentum. Impulse means what? Momentum is what? Then relation between impulse and momentum is what? Impulse momentum principle. Then we'll discuss about coefficient of restitution. When any body strikes of some mass to another body of infinite mass, right? Then what is velocity, rebound velocity of the bodies? And we'll solve problems where when two bodies strikes with each other, what are the velocities after impact? In most of the universities, you can say this is a common type of problem. Ball hai, strike kiya, right? With some velocity it rebounds, again it strikes, again it rebounds, right? So after each collision how much height, maximum height it attains, ये part हो गया, right? ये तो ऐसा inclined plane है, ऐसा एक inclined wall है, body ऐसा in any direction it strikes, perpendicular नहीं है suppose, right? How will find out velocity of body after impact? Maybe is there loss of kinetic energy? How to find out loss of kinetic energy? क्लियर? दैट मीन्स ये जो चैप्टर है ये स्लाइटली लेंदी चैप्टर है, तो टुडे विल डिस्कस अबाउट थ्योरी पार्ट के प्रिंसिपल कैसा आता है, कोफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन वगैरह कैसा आता है, एंड देन नेक्स्ट लेक्चर ऑनवर्ड्स आई विल सॉल्व अराउंड यू कैन से 7-8 प्रॉब्लम्स ऑन इम्पल्स मोमेंटम प्रिंसिपल. ओके, चलो कैन वी स्टार्ट नाउ. अभी इम्पल्स मोमेंटम प्रिंसिपल में सबसे पहले जो है इम्पल्स क्या रहता है, राइट? व्हेन एनी बॉडी is subjected to some external forces and then body is having some velocity. Force is acting on body and body is having some velocity, correct? When force acts on a body, how much time it acts means product of force and the time interval in which that force acts. This product is called as what? Impulse. देखो one by one terms क्या क्या है. Number one, इम्पल्स. इम्पल्स क्या रहता है? इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू अ टाइम इंटरवल इन विच दैट फोर्स एक्ट्स. यू कैन से दिस वन इज व्हाट? एफ इनटू ये डेल्टा टी, करेक्ट? दिस इज व्हाट? इम्पल्स रिप्रेजेंटेड बाय आई और मे बी रिप्रेजेंटेड बाय जे. नेक्स्ट जो है इम्पल्स मोमेंटम प्रिंसिपल है ना, तो यू मस्ट नो व्हाट? मोमेंटम. यू मस्ट नो व्हाट? मोमेंटम. क्या रहता है मोमेंटम? मोमेंटम इज, ये सब 11th-12th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा है ना? इफ यू आर नॉट रिकॉलिंग, इट इज प्रोडक्ट ऑफ व्हाट? मास ऑफ बॉडी इनटू इट्स वेलोसिटी. मोमेंटम जो है इज व्हाट? प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू इट्स velocity, right? Means you can say it is m into v, correct? ये हो गया तुम्हारा momentum. Now what is relation between impulse and momentum? That is called as impulse momentum principle. एकदम सिंपल है. You know Newton's law. क्या रहता है Newton's law? F equal to mass into acceleration. अपने डेलेबर्ट्स प्रिंसिपल में भी यूज किया था, ये टर्म लेफ्ट साइड में लिया, राइट? तो इनर्शिया फोर्स हो गया मास इनटू एक्सीलरेशन. नाउ ये जो रिलेशन है ये इजीली कैसा आएगा? देखो, एफ इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन को डीवी बाय dt लिख सकते हैं ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट टाइम, डीवी बाय dt. सिंपली आई रिप्लेस दिस वन एक्सीलरेशन बाय डीवी बाय dt. चलो dt टर्म को इफ आई टेक इट ऑन लेफ्ट साइड, एफ इनटू व्हाट? dt is what? m into dv. Means when force acts on a body in very short interval of time, then that body which is having mass equal to m kg, its velocity changes, varies by dv. ये छोटा टाइम इंटरवल है, स्मॉल चेंज इन स्पीड है, राइट? अभी क्या करेंगे? For any long time interval, if you want to find out what is the change in velocity, तो क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे. I'll integrate it. F integral of what? F dt
इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ व्हाट m इंटू डी वी। अभी ये जो टाइम है से वेरीज फ्रॉम व्हाट t1 टू t2, velocity varies from say v1 to v2. When time is t1, velocity is v1. At this time instant t2, velocity is what? v2. Now if I'll assume कि force constant है तो f into integral of dt, integral of dt is what? t varies from t1 to t2 equal to mass of body constant है, integral of dv is what? v varies from v1 to v2। चलो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो क्या हो जाएगा f इंटू t2 माइनस t1, अपर लिमिट t2 माइनस लोअर लिमिट t1 इक्वल टू व्हाट m फाइनल वेलोसिटी v2 इनिशियल वेलोसिटी v1। क्लियर? दैट मीन्स t2 माइनस t1 है सम टाइम इंटरवल हो गया, तो f इंटू व्हाट डेल्टा t इक्वल टू व्हाट m इंटू व्हाट डेल्टा v। This one is what? Relation between impulse and momentum. F into delta t is what? Impulse, right? ये impulse है। And m into delta v, m v2 final momentum minus m v1 initial momentum, means it is a change in momentum, final momentum minus initial momentum. That means impulse equal to what? Can you write it like this? Change in momentum। तो change in momentum is always equal to what? Impulse। इसको अगर impulse f into delta t आपका I है impulse, change in momentum will write as what? Final momentum। Final momentum means mv2 minus initial momentum। change कैसा लिखते हैं always? final minus initial, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो I इक्वल टू व्हाट? m v2 माइनस m v1 और I इज व्हाट? डेल्टा m v। एनी फॉर्म यू कैन से, ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं। आया किधर से? इम्पल्स मोमेंटम प्रिंसिपल। ये क्या है? ये न्यूटन्स लॉ है, राइट? ये हो गया तुम्हारा न्यूटन्स लॉ। तो आपका फर्स्ट पॉइंट था इम्पल्स, सेकंड इम्पल्स, फर्स्ट इम्पल्स, सेकंड वन मोमेंटम, ये क्या हो गया? इम्पल्स मोमेंटम प्रिंसिपल। इधर से स्टार्ट किया, राइट? दिस वन सबने नोट किया। देन यू आर गेटिंग व्हाट? इम्पल्स मोमेंटम प्रिंसिपल। अभी नेक्स्ट जो पॉइंट है नंबर 4, ये है लॉ ऑफ कॉन्जर्वेशन ऑफ, लॉ ऑफ conservation of momentum, law of conservation of momentum। ठीक है, law of conservation of momentum। इसको इरेज करूं, होगा ना? सबने नोट किया? सी हियर। अभी what happens when two bodies strikes with each other? कोलिजन होता है, धुड़ुम करके ऐसा जो कोलिजन होता है, राइट? when two bodies collides with each other, strikes with each other, तो ड्यूरिंग कोलिजन लार्ज फोर्स इज एक्सर्टेड, ड्यूरिंग कोलिजन लार्ज फोर्स इज एक्सर्टेड इन अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। ऐसा जब होता है दैट कोलिजन इज कॉल्ड एज व्हाट? इम्पैक्ट। दैट कोलिजन इज कॉल्ड एज इम्पैक्ट। जैसा क्रिकेट में बॉल मूव होता है, इधर सपोज बैट्समैन है, वो बैट्समैन बैट से उसको डायरेक्शन चेंज होता है, राइट? मीन्स बॉल स्ट्राइक्स द बैट एंड देन बॉल रिबाउंड्स। अभी बॉल जब स्ट्राइक होता है एंड रिबाउंड होता है, हाउ मच टाइम इट रिमेन्स इन कॉन्टैक्ट विद द बैट? फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। इस टाइम इंटरवल क्या होगा? एकदम छोटा, राइट? इन शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। तो बैट्समैन को जर्क लगता है, राइट? बैट किधर जाता है? बैक साइड में। बैट्समैन फोर्स तो अप्लाई करता है बट ही विल एक्सपीरियंस जर्क, राइट? दैट इज व्हाट? इंपल्सिव फोर्स। दैट फोर्स इज कॉल्ड एज व्हाट? इंपल्सिव फोर्स। अभी इसमें क्या होता है? इसका अगर एफबीडी निकालते हैं, ड्यूरिंग एनी कोलिजन व्हाट एग्जैक्टली हैपन? सपोज ये आपका बॉल है, दिस वन इज व्हाट? बॉल। ये जो है ये सपोज बैट है। व्हेन बॉल इज इन कांटेक्ट विथ बैट वी हैव टू
draw free body diagram. We'll draw what? Free body diagram. तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट इधर मीन्स ये कॉन्टैक्ट पॉइंट है, सपोज ये ऐसा लाइन निकला, ठीक है, ये कॉन्टैक्ट पॉइंट, इसको इधर कॉन्टैक्ट में रहेगा. टू रिप्रेजेंट योर फोर्सेस आई सेपरेट किया एंड आई एम ड्रॉइंग सेपरेट फ्री बॉडी डायग्राम. बॉल जो है, से दिस इज योर बॉडी नंबर 1. ये जो बैट है, दिस वन इज से बॉडी नंबर 2. बॉल का मास से m1, बैट का मास है से m2. 1 2 कुछ तो नंबर दिया, राइट. अभी व्हेन दिस बॉल इज इन कॉन्टैक्ट विथ बैट ड्यूरिंग कोलिजन, ये जो स्ट्राइक होता है, राइट, तो सम फोर्स इज एक्सर्टेड बाय बॉल ऑन द बैट. व्हाट इज द डायरेक्शन? तो फोर्स इज एक्सर्टेड टूवर्ड्स दिस बैट. ये जो फोर्स है, दिस इज फोर्स एक्सर्टेड बाय बॉडी 1 मीन्स बॉल ऑन बॉडी 2. F12 लिख सकते हैं. F12 मीन्स व्हाट? फोर्स एक्सर्टेड बाय बॉल ऑन द बैट. तो एक रिएक्टिव फोर्स व्हाट इज डेवलप, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस आर डेवलप. कंसेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम, राइट. फोर्स इज एक्सर्टेड बाय दिस बैट on the ball. तो this is what? F21. and इनका जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड इज what? सेम. F12 इक्वल टू what? F21. अभी ये जो फोर्सेस एक्सर्ट हो गए, दैट इज इन शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम. शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम. तो कंसिडरिंग दिस इज सिस्टम ऑफ 2 बॉडीज, इम्पल्स अगर देखेंगे, इम्पल्स क्या इम्पल्स होगा, देखो फोर्स जो एक्सर्ट हो गया ये F12, दिस वन एक्ट्स इन शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम से डेल्टा टी. तो ये इसका इम्पल्स क्या होगा, F12 इंटू डेल्टा टी, राइट. एंड ये जो फोर्स एक्सर्ट हो गया, इसका इम्पल्स F21 इंटू डेल्टा टी. भाई डायरेक्शन अपोजिट है ना. अगर ये इम्पल्स पॉजिटिव लिया तो ये फोर्स लेफ्टवर्ड है, तो ये इम्पल्स क्या हो जाएगा, माइनस F21 इंटू डेल्टा टी. ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, F12 F21, टाइम इंटरवल भी सेम है. इम्पल्स क्या हो गया, 0. मीन्स ड्यूरिंग इम्पैक्ट, ड्यूरिंग कोलिजन क्या होता है, इम्पल्स जो पार्ट है, इम्पल्स हो गया आपका 0. मीन्स ये जो इम्पल्स है ये 0 हो गया. मीन्स क्या हो जाएगा, चेंज इन मोमेंटम बिकम्स व्हाट, 0, राइट. तो इन law of conservation of momentum, when 2 bodies strikes with each other, means during impact sum of impulses during impact is what, 0. sum of impulses 0 हो गया. तो आपका change in momentum is nothing but what, impulse. तो impulse क्या है, 0. impulse 0 हो गया. चेंज इन मोमेंटम 0. चेंज क्या रहता है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम इज 0. मीन्स इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम. ये तो ना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. चेंज मीन्स व्हाट, फाइनल माइनस इनिशियल मोमेंटम. मीन्स इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल, ऐसा लिखो, इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू व्हाट, फाइनल मोमेंटम. Initial momentum equal to what, final momentum. भाई initial momentum how will write, because single body नहीं है, there are 2 bodies. इसका मास m1 है, इसका m2 है, राइट. इसका इनिशियल वेलोसिटी रहेगा कुछ, इसका इनिशियल वेलोसिटी. तो इनिशियल मोमेंटम इज व्हाट, दोनों बॉडी का इनिशियल मोमेंटम ऐड करते हैं. मास ऑफ बॉडी 1 इज m1, इसका वेलोसिटी अज्यूम किया v1. तो m1 v1 इज व्हाट, इनिशियल मोमेंटम ऑफ बॉल. बैट का क्या रहेगा, m2 v2, वेयर m2 इज मास ऑफ सेकंड बॉडी मीन्स बैट, एनी 2 बॉडीज, राइट. ये तो मैं एग्जाम्पल लिया ऐसा. बॉडी 1 उसका मास उसका वेलोसिटी, बॉडी 2 उसका मास उसका वेलोसिटी, ये बिफोर कोलिजन. एंड आफ्टर कोलिजन मीन्स फाइनल मोमेंटम में आएगा, मास ऑफ बॉडी 1 एज इट इज, इसका कुछ वेलोसिटी रहेगा, से आई विल राइट बाय डैश प्लस व्हाट, m2 v2 डैश, m2 v2 डैश, where
m1 and m2 represents what? Masses, right? Masses of bodies 1 and 2 respectively, right? v1 and v2 ये कौन सा velocities है? Initial means what? Before impact. Velocities of bodies 1 and 2 just before impact, just before collision. ये हो गया v1 एंड v2. इसके नीचे दिखेगा ना स्क्रीन में? हाँ दिखेगा. ओके, ये क्या है? v1 dash and v2 dash represents what? Velocities of bodies 1 and 2 just after impact. Clear? तो ये होगा लॉ. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन. इन सॉल्विंग मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम दिस इक्वेशन इज रिक्वायर्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. कैसा ध्यान में रखेंगे? m1 v1 plus m2 v2 equal to m1 v1 dash plus m2 v2 dash, where v1 and v2 are what? Velocities of bodies 1 and 2 just before impact. v1 dash and v2 dash represents what? Velocities of bodies just after impact. ये होगा तुम्हारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. ये क्या हुआ? पॉइंट नंबर 4. ठीक है. वन मोर पॉइंट विल डिस्कस. सपोज देर आर 2 बॉडीज. ठीक है, इसको इरेज करो. होगा ना? नोट किया सबने? हाँ. वन मोर पॉइंट विल डिस्कस. इसमें क्या होता है? व्हेन 2 बॉडीज स्ट्राइक्स विथ ईच अदर, क्या क्या होता है? सुनो केयरफुल. हाँ, पॉइंट नंबर क्या था? 5 था. सी है. हाँ, केयरफुल. हाँ, ये एक बॉडी है, से बॉल है, स्पीयर है, राइट? ये एक बॉल है, ये बॉडी 1 है, ये आपका बॉडी 2 है. बॉडी 1 एंड बॉडी 2. क्लियर? अभी ये बॉडी 1 एंड बॉडी 2 जो है ना, बॉडी 1 मास m1, बॉडी 2 मास m2, इसका वेलोसिटी ऐसा कुछ है राइटवर्ड v1, इसका वेलोसिटी राइटवर्ड है से v2. दोनों स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं, राइट? जैसा है पे 2 गाड़ी चलता है, राइट? सेम स्पीड से. अभी मैं बोलता हूँ कि आफ्टर सम टाइम बॉडी 1 स्ट्राइक्स विद बॉडी 2. ये कब पॉसिबल है? व्हेन वेलोसिटी ऑफ बॉडी 1 इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ बॉडी 2. करेक्ट ना? इसका स्पीड अगर ज़्यादा रहेगा देन ओनली दिस विल स्ट्राइक. इसका ज़्यादा रहेगा तो ये तो डिस्टेंस बढ़ते जाएगा, स्ट्राइक ही नहीं होगा. तो व्हेन इट स्ट्राइक्स हियर मीन्स व्हाट? वेलोसिटी ऑफ बॉडी 1 must be greater than v2. If v1 is greater, then body 1 strikes with each other. इधर स्ट्राइक होगा, राइट? ये अगर स्ट्राइक होगा तो आफ्टर कोलिजन ये जो बॉडी 1 है, ये बॉडी 1, दिस वन मूव्स विथ डिफरेंट वेलोसिटी से v1 डैश, एंड ये जो बॉडी 2 है, दिस वन मूव्स विथ some velocity v2 dash. तो अभी सीन क्या है? इसका वेलोसिटी ज़्यादा है, वेलोसिटी ऑफ बॉडी 1 इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ बॉडी 2. कोलिजन इज पॉसिबल ओनली व्हेन v1 इज ग्रेटर देन v2. अभी सपोज एट t इक्वल टू 0 इसमें कोई डिस्टेंस है, 10 मीटर डिस्टेंस है, राइट? अज्यूम करो 10 मीटर. v1 ज़्यादा है, टाइम हो गया 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट करते करते डिस्टेंस कम होते जाएगा ना. डिस्टेंस कम हो रहा है मीन्स व्हाट? बॉडी 1 अप्रोचेस टुवर्ड्स बॉडी 2. बॉडी 1 अप्रोचेस टुवर्ड्स बॉडी 2. इसलिए ये v1 इसका वेलोसिटी माइनस ये वेलोसिटी, ये पॉजिटिव आएगा ना. v1 माइनस v2 क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, बिकॉज v1 इज ग्रेटर एंड बॉडी 1 अप्रोचेस टुवर्ड्स बॉडी 2. ये जो डिफरेंस है दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच. दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच. v1 माइनस v2. अभी बॉडी 1 स्ट्राइक होगा एंड देन बॉडीज सेपरेट्स विथ सम वेलोसिटी.
बॉडी 1, इधर बॉडी 2 था, बॉडी 1, ये दोनों ऐसा ऐसा चल रहा है, डिस्टेंस कम हो रहा है, स्ट्राइक हो गया, राइट, स्ट्राइक हो गया तो दोनों का स्पीड चेंज हो गया, बॉडी सेपरेट हो गया, सेपरेट हो गया मीन्स ये v2 डैश जो है ना, दिस वन मस्ट बी ग्रेटर देन v1 डैश, तभी सेपरेशन पॉसिबल है। ये अगर ज़्यादा रहेगा अभी भी तो क्या हो जाएगा, दिस विल पुश कंटिन्यूसली बॉडी टू और मूव एज अ सिंगल यूनिट, ऐसा हो जाएगा, राइट। तो से बॉडी सेपरेट्स आफ्टर कोलिजन, तो v2 डैश अगर ज़्यादा रहेगा देन ओनली यू कैन से सेपरेशन इज पॉसिबल। मीन्स ये जो डिफरेंस है v2 डैश माइनस v1 डैश इज कॉल्ड एज व्हाट, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। इसको क्या बोलेंगे, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो मैं ये वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन ये क्यों बोल रहा हूँ इधर सब, इसका जो रेशो रहता है ना, किसका, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, सेपरेशन है हाँ, टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ये जो रेशियो है ये वेलोसिटी डिवाइडेड बाय वेलोसिटी फॉर दैट पर्टिकुलर पेयर ऑफ मटेरियल, ये जो रेशियो है ये ऑलवेज कांस्टेंट रहता है एंड इज कॉल्ड एज व्हाट, कोएफिशिएंट ऑफ restitution, and is called as coefficient of restitution and is represented by what, small a. Ratio of what, velocity of separation to the velocity of approach. This ratio always remains constant and is called as coefficient of restitution represented by small e. तो ये velocity of separation क्या हुआ, देखो v2 डैश माइनस v1 डैश अपॉन ये क्या है, v1 माइनस v2, करेक्ट, ये होगा आपका रेशो। तो इसको ऐसा लिखो, E इक्वल टू, मैंने माइनस साइन कॉमन लेता हूँ फ्रॉम डिनोमिनेटर एंड विल राइट v2 डैश माइनस v1 डैश अपॉन v2 माइनस v1, ठीक है। दैट मीन्स टू रिकलेक्ट इट बिकम्स इजी। इधर वेलोसिटी न्यूमरेटर में वेलोसिटी आफ्टर इम्पैक्ट, डिनोमिनेटर में वेलोसिटी बिफोर इम्पैक्ट, क्लियर। पहले कौन सा बॉडी, सेकंड बॉडी का वेलोसिटी माइनस फर्स्ट बॉडी का, पहले सेकंड बॉडी का माइनस फर्स्ट बॉडी का, ये इक्वल टू व्हाट, माइनस v2 डैश माइनस v1 डैश अपॉन v2 माइनस v1। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या था, m1 v1 प्लस m2 v2 इक्वल टू m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश। कोएफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन का फॉर्मूला क्या है, e इक्वल टू माइनस v2 डैश माइनस v1 डैश अपॉन v2 माइनस v1। अच्छा, अभी ये जो e का वैल्यू है ना, दिस वन वेरीज फ्रॉम 0 to 1, 0 to 1 इसका रेंज है 0 से 1 तक। ये अगर 0 रहेगा then the impact is called as perfectly plastic impact. अगर E का वैल्यू 1 है then it is called as perfectly elastic impact, and if it is in between 0 and 1 means greater than 0, less than 1, so it is called as semi elastic impact. This one will write in point number 7, point number 6, ठीक है, हो गया, समझ में आ गया ना। पॉइंट नंबर 6 क्या है, पॉइंट नंबर 6 ए में लिखेंगे, इफ E इक्वल टू 1 then the impact is called as, then the impact is called as perfectly elastic impact, perfectly elastic impact। अगर E का वैल्यू जो है इट इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1, greater than 0 and less than 1, then the impact is called as what, semi
इलास्टिक इम्पैक्ट, ये हो गया नंबर 1 परफेक्टली इलास्टिक, राइट। बी, इफ ई जो है ये कैसा है, लेस देन 1 है, किससे ज़्यादा है, 0 से ज़्यादा है, इन बिटवीन 0 and 1, then the impact is called as semi elastic impact. And if E equal to 0, then the impact is called as perfectly, it is called as what, perfectly plastic impact, perfectly plastic impact. अब ये perfectly plastic के लिए ना एक इक्वेशन डेरिव करेंगे, एकदम सिंपल। हाँ, E0 है, चलो E का फॉर्मूला बताओ। E का फॉर्मूला क्या था, E इक्वल टू माइनस ऑफ, न्यूमरेटर में क्या आया था, याद है कि नहीं, बोलो फटाफट, V2 डैश माइनस V1 डैश अपॉन V2 माइनस V1। परफेक्टली प्लास्टिक के लिए E क्या है, 0, इसको 0 करो तो ये डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया तो ये 0 हो गया, मीन्स V2 क्या आया, V2 डैश माइनस V1 डैश इक्वल टू 0, मीन्स क्या हुआ, V2 डैश इक्वल टू V1 डैश। इसका मीनिंग क्या हुआ, परफेक्टली प्लास्टिक इम्पैक्ट में दोनों बॉडी का वेलोसिटी सेम है, मीन्स व्हाट, दोनों बॉडी मूव्स एज अ कंबाइंड यूनिट, दोनों बॉडी साथ में चलेगा, राइट, एज अ कंबाइंड यूनिट। तो ये जो है दिस वन यू कैन राइट एज अ V डैश, called as what, common velocity, it is called as common velocity after impact। चलो ये कॉमन वेलोसिटी V डैश निकाल सकते हैं क्या, आराम से निकाल सकते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आपको पता है क्या है, m1 v1 प्लस m2 v2 इक्वल टू m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश। अभी v1 डैश v2 डैश कॉमन है, सेम है ना, इट इज व्हाट सेम। ये कॉमन लिया, उसको v डैश अगर लिखा तो ऐसा हो सकता है क्या, m1 प्लस m2, ये कॉमन लिया तो ये हो गया v डैश, मीन्स v डैश क्या हुआ, v डैश इक्वल टू क्या हुआ, m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन m1 प्लस m2, ये हुआ कॉमन वेलोसिटी आफ्टर इम्पैक्ट। कोई प्रॉब्लम में ऐसा अगर रहेगा, राइट, कि आफ्टर इम्पैक्ट बोथ द बॉडीज मूव्स विद कॉमन वेलोसिटी और अज्यूम इम्पैक्ट इज परफेक्टली प्लास्टिक, तो आपको वेलोसिटी निकालना डायरेक्ट आना चाहिए। क्या किया, कुछ नहीं, ई का वैल्यू 0 डाला तो ये मिल गया, दोनों वेलोसिटी सेम है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में सब्स्टिट्यूट किया, कॉमन वेलोसिटी आया m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन m1 प्लस m2। तो ये लेक्चर में अपने क्या क्या किया है, सबसे पहले इम्पल्स मीन्स व्हाट, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू टाइम इंटरवल। सेकंड पॉइंट क्या था, मोमेंटम, वो तो सबको पता है, मोमेंटम इज व्हाट, प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। फिर थर्ड क्या आया, इम्पल्स मोमेंटम प्रिंसिपल, रिलेशन बिटवीन इम्पल्स एंड मोमेंटम क्या रहता है, इम्पल्स इक्वल टू व्हाट, चेंज इन मोमेंटम, इम्पल्स मीन्स f इंटू डेल्टा टी इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम मीन्स व्हाट, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम क्या था, mv2 माइनस mv1, राइट, ये कुछ है। फिर क्या हुआ, ड्यूरिंग इम्पैक्ट क्या होता है, टू बॉडीज है, एज अ सिस्टम ऑफ बॉडी कंसिडर किया तो जो इम्पल्स रहता है वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन रहता है। तो सिस्टम एज अ सिस्टम ऑफ टू बॉडीज अगर कंसिडर किया तो वो इम्पल्स हो गया आपका 0, इम्पल्स 0 हो गया तो चेंज इन मोमेंटम इक्वल टू इम्पल्स, तो 0 हुआ, चेंज इन मोमेंटम 0 हुआ मीन्स व्हाट, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम 0, तो इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू व्हाट, फाइनल मोमेंटम। तो उसका इक्वेशन आया फिर m1 v1 प्लस m2 v2 इक्वल टू m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश। फिर आया कोएफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, क्या आया कोएफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन,
ratio of velocity of separation to the velocity of approach always remains constant and is called as coefficient of restitution. उसका इक्वेशन ये आया E equal to minus of V2 dash minus V1 dash upon V2 minus V1. फिर ये तीन टाइप हो गए, E equal to 1 तो परफेक्टली इलास्टिक, E greater than 1 less than 0 सेमी इलास्टिक इम्पैक्ट, E equal to 0 perfectly plastic impact. For perfectly plastic impact velocities of both the bodies after impact same रहता है, called as common velocity after impact. That velocity is given by what? m1 v1 plus m2 v2 upon m1 plus m2. Okay, hello, thank you very much, bye bye, we'll meet in next lecture.